देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଆଜିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ +3 ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି ୟୁଜି ବା +3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଲାଗି ପୁଣି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଲାଗି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଅନଲାଇନରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେହିପରି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 12 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା 45 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ୱେଟିଂ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ୱେଟିଂରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କଲେଜ ୱାରି ଖାଲି ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେଧା ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଲେଖାଇବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଖୋଲିବ ଘରୋଇ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ କଲେଜ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଖୋଲିବ ଘରୋଇ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ କଲେଜ। ଗତ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ବସିଥିବା ହାଇପାୱାର କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶୈକ୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନୂଆ କୋର୍ସ ସାମିଲ ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ହାଇପାୱାର କମିଟି ମତ ଦେଇଛି। ଘରୋଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରୋକିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୂଆ ଘରୋଇ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଉପରେ 5 ବର୍ଷିଆ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହାଇପାୱାର କମିଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ବନ୍ଦ ଲାଗି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 11,292 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 11,292 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ନୂତନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏବେ 7,413 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା OSSCକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟରେ କାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ବା UCC ବିଲ୍ ବା ଏକକ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍। ବିଜେପିର ରାଜସ୍ଥାନ ସାଂସଦ କିରୋଡ଼ି ଲାଲ ମୀନା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ UCCରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବାହାଘର, ପୋଷ୍ୟଗ୍ରହଣ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରଖିବାକୁ ବିଲ୍ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଭଏସ୍ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 63 ଓ ବିଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ 23 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। TMC, BJD ଏବଂ YSRCPର ସଦସ୍ୟ ମତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଛି ନ କହି ଗୃହରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ବିକରାଳ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡୋସ୍। ପ୍ରଭାବରେ 3 ରାଜ୍ୟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡୋସ୍ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁର ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାମିଲନାଡୁର ଚେଙ୍ଗଲପଟ୍ଟୁ, କାଞ୍ଜିପୁରମ୍ ଓ ଭିଲ୍ଲୁପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁଡାଲୋର, ମାଇଲାଦୁଥୁରାଇ, ନାଗପଟ୍ଟିନମ୍, ତିରୁଭରୁର, ତାଞ୍ଜଉର ଓ ପୁଦୁକୋଟ୍ଟଇ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ଲାଗି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। IMD ରାଜ୍ୟରେ 9 ଓ 10 ଡିସେମ୍ବର ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ମର୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି LIC। 4 ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଲୟ। ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଘରୋଇକରଣ ଓ ମର୍ଜରରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ LICରେ ଦେଶର 4 ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବିଲୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ଦ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର LICରେ ବିଲୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବେପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁସାରେ ଏଥିଲାଗି ବୀମା ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିନିୟମ 1999 ଓ ବୀମା ଅଧିନିୟମ 1983ରେ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଜୀବନ ବୀମା ଓ ଅଣଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ବିକ୍ରି ଲାଗି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ରହୁ। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ବିଲୟ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 7, ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ରାମପେଜ୍ ମିଜାଇଲ, ଅଟକାଇ ପାରିବନି ଶତ୍ରୁ। ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ରାମପେଜ୍ ମିଜାଇଲ। ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସିଥିବା ରାମପେଜ୍ ମିଜାଇଲ ପାଇଁ ଗୋଆର ଚିକାଲିମ୍ରେ
एक टेस्टिंग फैसिलिटी तैयारी करा जाउछि। यह लंबा दूरता अतिक्रम करिपारुथिबा मिसाइल आकाशरू भूपृष्ठ को टार्गेट करिपारुथिबा एक सुपरसोनिक मिसाइल। यह मिसाइल 15 फुट लंब एवं एहार ओजन 570 किलोग्राम रही। यह जीपीएस द्वारा परिचालित मिसाइल जहाँ ईरान रो S-300 डिफेन्स सिस्टम को जवाब दे पारे। रामपेज मिसाइल राडार रे धरा पड़िले भी एहार प्रखर गति जोगु याकु रोकिबा मुश्किल, अर्थात शत्रु चाहिए भी याकु इंटरसेप्ट मिसाइल द्वारा खसई पारिबे नाही। रामपेज मिसाइल द्वारा भारत फाइटर जेट सीमा सेपटे थिबा शत्रुर कमांड सेंटर एयरफोर्स बेस आदि को नष्ट करि पारिबो। एई मिसाइल को इस्राएली एरोस्पेस इंडस्ट्री तैयारी करिछि। नंबर 8 हिमाचल प्रदेश रे किए हेबे मुख्यमंत्री, हाईकमांड नेबे निष्पत्ति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस सरकार गठन करने को बहुमत पाइथिले मध्य किए मुख्यमंत्री हेबे ताकु नहीं छकपंजा जारी रही। कांग्रेस राज्य में मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा नकरी निर्वाचन लड़ुथिला। निर्वाचन जीतिबा परे काली नवनिर्वाचित विधायक दल बैठक बसीथिला। एथिरे विधायक दल नेतांकु चयन कराजिबार थिला, किंतु बैठक रे कोनोसी ना उपरे भी मोहर बाजिनी। विधायक माने केंद्रीय पर्यवेक्षक उपस्थिति रे गोटे संकल्प पारित करिसंती। एही धाड़िका संकल्प पत्र रे मुख्यमंत्री बाछिबा निष्पत्ति कांग्रेस हाईकमांड उपरे छड़ा जाइछि। हाईकमांड जहाकु बाछिबे सेही राज्य रे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे बोली बैठक रे निष्पत्ति होइछि। नंबर 9 पुणी थरे पड़िबो महंगा माड़, अनेक बैंक बढ़ेइले होम लोन। आरबीआई रेपो रेट वृद्धि घोषणा पर अनेक बैंक निजर गृह ऋण बढ़ाई। बैंक ऑफ भारत खुचरा लोन पर यार सर्वनिम्न सुधार डिसेम्बर 8 रु 8.85% रही। बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट अनुसार रेपो रेट्रे संशोधन को दृष्टि रखी रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट 9.10% कर व्यतीत एक वर्षिया MCLR 8.15%, 6 मासर MCLR 7.90% कर इंडियन ओवरसीज बैंक लिंक्ड लैंडिंग रेट 9.61% वृद्धि कर डिसेम्बर 10 रु लागू हेबो। नंबर 10 मोनेट पावर को किनिला GSPL। नवीन जिंदल संस्था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड GSPL 410 कोटी टंकार मोनेट पावर को किणी। अनुगुड़ जिले में मोनेट पावर रो 1050 मेगावाटर निर्माणाधीन पावर प्लांट रही। ऋण परिशोध करिबारे विफल होइतिबा मोनेट पावर विरोध में IDFC बैंक पक्षरु 2018 रे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया आरंभ कर जाइथिला। कंपनी को बंद करबा लागि 2019 रे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल निर्देश देइथिले। मोनेट उपरे 3819 कोटी टंकार ऋण बकाया थिला। मोनेट पावर प्लांट को GSPL निजस्व कार्य में व्यवहार करिवो, सेथिरे 20 रु 25% कम कोयला व्यवहार हेबो। मोनेट्र पावर प्लांट GSPL लागि बेस आकर्षणीय स्थान रे रहिछि, कारण अनुगुड़ रे थिबा GSPL रो कारखाना एवं उत्कल C, B1 एवं B2 कोयला खनि पाखापाखि अंचल रे ई पावर प्लांट रहिछि। नंबर 11 पद्मपुर रे काहेकि हारिला बीजेपी, कारण कहिले जयनारायण। पद्मपुर रे काहेकि हारिला बीजेपी, दल को शोचनीय पराजय देखा कहीं पड़ा। एने शुक्रवार जवाब रखिंट विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्र। से कहते पद्मपुर रे कांग्रेस भोट संपूर्ण भाव बीजेडी नहीं गला, जहाँ आमपाई विपद है। बीजेडी जीतबार कारण अर्थबल, बाहुबल और सरकारी कल। नवीन पट्टनायक निर्वाचन को व्ययबहुल करदेले। जयनारायण आहरी कहते पद्मपुर रे जीतबू बोली आशा रखिथिलु। गत थर ठारू बीजेपी को अधिक भोट मिली, किंतु भोट व्यवधान अधिक थिला। पद्मपुर पराजयर समीक्षा कराजिबो। 24 रे व्यापक लड़ई हेबो। ओडिशा राजनीति कांग्रेस बाहरी गलानी, तेणु बीजेडी और बीजेपी मध्य लड़ई हेबो बोली से कहिसंती। नंबर 12 दिल्ली बीजेपी यूटर्न, संख्यागरिष्ठता हासिल करिथिबारु दिल्लीर परवर्ती मेयर आप हेबो। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली पौर निर्वाचन में 134 आसन जीति जातीय राजधानी रे बीजेपी 15 वर्ष शासनर अंत घटाई। तेबे मेयर निर्वाचन पर दुई दल भितर कड़ा टक्कर हेबो बोली चर्चा होतिबा बेले एबे दिल्ली बीजेपी मुख्य आदेश गुप्ता यह उपर निजर बयान देइछंती। आप संख्यागरिष्ठता हासिल करिथिबारु परवर्ती मेयर सेमानक दलरू हेबो बोली कहिसंती आदेश गुप्ता। दिल्ली बीजेपी सभापति आदेश गुप्ता जातीय गणमाध्यम NDTV को साक्षात्कार दे स्पष्ट करिसंती जे आप संख्यागरिष्ठता हासिल करिछि, परवर्ती मेयर आम आदमी पार्टी ही हेबे। MCD रे बीजेपी आपर विरोधी दलर भूमिका ग्रहण करिवो। एहा पूर्वरु से कहिथिले जे मेयर केवल बीजेपी रो हेबो, किंतु वर्तमान बीजेपी एही प्रसंग रे यूटर्न मारिछि। नंबर 13 रेल दुर्घटना हेले उत्तरदायी हेबे वरिष्ठ अधिकारी। ट्रेन धक्का, लाइनच्युत, अग्निकांड और रेलवे क्रॉसिंग रे दुर्घटना आदि एणिकी रेल विभाग वरिष्ठ अधिकारी मानक उत्तरदायी करा जिवो। रेल बोर्ड यह निष्पत्ति ग्रहण करिछि।
बोर्ड पक्षर कहुई वरिष्ठ अधिकारी अवहेला जो बहु दुर्घटना घटुची किंतु तलिया कर्मचारी मान कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बेले प्रथम श्रेणी कर्मचारी खसी जाउछंती। चाप बढ़िबा परे वरिष्ठ अधिकारी कार्यानुष्ठान आरंभ हेउछि। सोमवार रेल बोर्ड द्वारा देशर समस्त जोनाल महाप्रबंधक मानक आदेश जारी कर जाइछि। एथिरे अधिकारी विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान को सुनिश्चित करने जोनाल अधिकारी मानक कहुई। नंबर 14 भूपेन्द्र पटेल तांको मंत्रिमंडल सह मुख्यमंत्री पदरु देले इस्तीफा। गुजरात विधानसभा निर्वाचन में से 56 आसन में जीति बीजेपी इतिहास रचिछि। देशर यह ऐतिहासिक विजय पर नुआ सरकार गठन प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। एही क्रम में गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल तांको मंत्रिमंडल सह शुक्रवार इस्तीफा देइछंती। एथिपई भूपेन्द्र पटेल मध्याह्न 12टा बेले राजभवन पहुंची राज्यपाल आचार्य देवव्रत को तांको इस्तीफा पत्र प्रदान करिथिले। बीजेपी चलित सप्ताह नुआ सरकार शपथ ग्रहण लगी योजना करिछि। एणु पार्टी पक्षरु एबे विधायक दल बैठक डकाजिबो जोथिरे दलर नेता निर्वाचन हेबो। आशा करा जाउछि पार्टी पुणी थरे भूपेन्द्र पटेल को नेता चयन करिबो। बीजेपी पक्षरु डिसेम्बर 12 तारिख में शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित होई पारे। एथिलागि प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। नंबर 15 ईरान रे भारत निर्माण करिथिबा चाबाहार बंदर को तालिबान समर्थन। ईरान रे भारत पक्षरु निर्माण कर जाइथिबा चाबाहार बंदर को तालिबान समर्थन करिछि। एही प्रकल्प को सबु प्रकार सहायता जोगाई दियाजिबो बोली तालिबान कहिछि। तालिबान वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु जारी एक बयान रे कहुଯାଇଛି जे मस्को मुंबई को जोड़ुवा नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रे अफगानिस्तान को सामिल करा जिबा प्रस्ताव को तालिबान स्वागत करुछि। एही प्रकल्प को सबु प्रकार सुरक्षा जोगाई देबाकू प्रस्तुत अछि बोली तालिबान कहिछि। चाबाहार बंदर प्रकल्पर प्रथम पर्यायर भारत $85 मिलियन विनियोग करिछि। एही बंदर द्वारा केवल भारत ईरान नुहे अफगानिस्तान मध्य विशेष भाव उपकृत हेबो। एणु एहाको भारत ईरान अफगानिस्तान मैत्री और रणनीतिक सहयोगितार एक अंश बोली कहुछि। नंबर 16 ओडिशा रे आरंभ हैला छेड़ी कृत्रिम प्रजनन। राज्य रे आरंभ हैला छेड़ी कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम। ओडिशार 30 जिले में 565 फील्ड एआई सेंटर द्वारा यह योजना कार्यकारी हेबो। आम राज्य में थिबा ब्लैक बेंजल और गंजाम प्रजाति छेड़ी शुक्र व्यवहार करी कृत्रिम प्रजनन करने को लक्ष्य रही। यह कार्यक्रम क्षुद्र और नाममात्र चाषी आर्थिक विकास दिगरे यह बेस उपादेय हेबो बोली कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई कहिसंती। नंबर 17 खोलिला राजमहल बहुतल पार्किंग। राजमहल यूनिट 2 रे थिबा बहुतल कार पार्किंग काली ठारू खोलिछि। काली संध्यारू एठारे गाड़ी रखिबाकू साधारण लोकंकू सुजोग मिलिछि। गत नवेम्बर 26 तारिख में शहीदनगर बहुतल पार्किंग कार्यक्रम होइछि। काली एही पार्किंग स्थल कार्यक्रम होइथिबारु यूनिट 1 हाट यूनिट 2 मार्केट बिल्डिंग प्रभृति अंचलर पार्किंग समस्या दूर हेबो बोली कहुछि। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड पक्षरु एही बहुतल पार्किंग व्यवस्था कर जाइछि। पार्किंग स्थली को आसिबा पूर्वरु लोक पार्किंग अंचल फांका अछि कि नाही जानिबा सह आगुआ स्लॉट बुकिंग करिबा सुविधा रहिछि। एठारे मध्य शहीदनगर भली पार्किंग देय रहिछि। कार पाई 1 घंटा को 40 टंका रहिथिबा बेले 2 घंटा को 60 टंका और 4 घंटारू ऊर्ध्व समय रहिले सर्वाधिक 100 टंका धार्य होइछि। सही बड़ी बाइक पाई 20 टंका धार्य होइथिबा बेले 2 घंटा रहिले 40, 4 घंटारू अधिक समय रहिले 80 टंका धार्य होइछि। नंबर 18 दिल्ली एमसीडी कांग्रेस रु जीतिले एबे आप रे मिसिले 2 जण काउंसिलर। दिल्ली नगर निगम निर्वाचन फलाफल आसबार तृतीय दिन में कांग्रेस को सबुठ बड़ झटका लगी। शुक्रवार दिन कांग्रेसर 2 जण काउंसिलर दल छाड़ी आम आदमी पार्टी रे जोग देइछंती। दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी व्यतीत ब्रिजपुरी वार्डर कांग्रेस काउंसिलर नाजिया खातून एवं मुस्तफाबाद वार्डर काउंसिलर सबिला बेगम आम आदमी पार्टी रे जोग देइछंती। आप्र नगर निगम दायित्व में थिबा दुर्गेश पाठक उभय कांग्रेस काउंसिलर एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष को दल में सामिल करिसंती। नंबर 19 यूपीआई पे व्यवहार करियब क्रेडिट कार्ड मिलिला एनपीसीआई रो अनुमति। एणिकी यूपीआई पे व्यवहार करियब क्रेडिट कार्ड एथिपई फिनटेक प्लाटफर्म रेजर पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सह क्रेडिट कार्ड माध्यम यूपीआई सेवा प्रदान करने पर एक सहभागिता करिछि। एनसीपीआई लगातार भाव में यूपीआई व्यवहार को बढ़ाई प्रयास जारी रखिछि। वर्तमान सुधा एनपीसीआई रूपे सह सहभागितार क्रेडिट कार्ड द्वारा यूपीआई पर चेष्टा जारी रखिथिला। एबे रेजर पे गेटवे पेमेंट रो सहभागिता परे व्यवसायी को रूपे क्रेडिट कार्ड द्वारा यूपीआई पेमेंट ग्रहण करने को अनुमति देइछंती। नंबर 20 विवाह विच्छेद पाई थिबा बड़ नियम को उच्छेद कले कोर्ट। ख्रीष्टियान संप्रदायर लोकंक विवाह विच्छेद को नहीं बड़ राय देइछंती केरल हाईकोर्ट। विवाह विच्छेद आईन 1869 रे थिबा प्रमुख तथा गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था को काली कोर्ट उच्छेद कर देइछंती। सहमति भित्तिरे विवाह विच्छेद पाई आवेदन करिबा पूर्वरु प्रथमे दंपति को गोटे वर्ष अलग होई रहिबाकू पड़िबो बोली नियम रहिथिला। हेले एहाको कोर्ट काली उच्छेद कर देइछंती। नंबर 21 गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा इस्तीफा पराजय को कले स्वीकार।
दलर शोचनीय पराजय पर कांग्रेस नेता रघु शर्मा गुजरात पार्टी प्रभारी पदर इस्तीफा देइछन्ति। निर्वाचन शोचनीय पराजय को स्वीकार करिबा परे से निज पदर इस्तीफा देइछन्ति। उल्लेखयोग्य जे रघु शर्मा कांग्रेसर निर्वाचनी परिचालना बुझुथिले। राज्य रे कांग्रेस आज जायर सबुठ बड़ पराजय सामना करिछि। नंबर 22 एलन मस्क विरोध में मामला रुजु। छटेई महिला को टार्गेट करने नहीं अभियोग। ट्विटर मालिकाना निज हाथ को नेबा परठारु एलन मस्क अनेक बड़ निष्पत्ति नैथिले, जोथिरे कर्मचारी को कंपानी बाहर करा सबुठ बड़ निष्पत्ति थिला। किंतु एबे एभଳି जणा पडुछि जे एही निष्पत्ति तांको उपर ही भारी पडुछि। ट्विटर अधिकरण पर छटेई नहीं कठोर निष्पत्ति जोगु कंपानी रे काम करुवा हजार हजार कर्मचारी चाकरी हरैथिले। किंतु एमानक मध्यरु दुई महिला एबे अमेरिकार एक कोर्ट रे एलन मस्क विरोध में मकदमा रुजु करिसंती। ट्विटर रे काम करिथिबा एही दुई महिला अभियोग करिसंती जे हठात एते संख्यक कर्मचारी छटेई फड़रे महिला कर्मचारी उपरे एहार गभीर प्रभाव पड़िछि। सेमाने कहिसंती जे एमिति करी बड़ मात्रा रे होइतिबा छटेई रे महिला कर्मचारी को टार्गेट करा जाइछि। नंबर 23 2022 रे 7 गुणा बढ़िछि मरुड़ी, 113 गुणा होइछि वज्रपात। चलित वर्ष भारत उपरे दैवी दुर्विपाकर प्रकोप बढ़िछि। 2021 मसीहा तुलन में मरुड़ी चलित वर्ष 7 गुणा अधिक होइछि। सेहिपरि वर्ष दिनिया वज्रपात 113 गुणा बढ़िछि। झड़ तोफान 8 गुणा बढ़िथिबा बेले हिमपात 60 गुणा ह्रास होइछि। फଳରେ थंडा ह्रास हेउछि। अर्थात देश में ग्रीष्म मरुड़ी आड़ को मुहाईछि बोली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पक्षरु मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार संसद में यह उत्तर रखिछंती। प्राकृतिक आपद विपद नहीं पचरा जाइथिबा प्रश्नर जवाब रे मंत्री यही सूचना देइछंती। गत एक वर्ष है भारत में दुईटी प्राकृतिक विपर्यय बढ़िछि। एथिरे प्रथम हेउछि वज्रपात और द्वितीयटी हेउछि मरुड़ी। नंबर 24 चलित वर्ष 1.82 लाख छाड़िलाणी भारतर नागरिकता। चलित वर्ष देशर 1,83,741 जन भारतीय नागरिकता छाड़िछंती एवं विदेश में जीवन बीतेइबाकु निष्पत्ति नैछंती। एही डाटा जनवरी रो अक्टोबर मध्य होइतिबा विदेश राष्ट्रमंत्री भी मुरलीधरन शुक्रवार लोकसभा सूचना देइछंती। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिकଙ୍କ प्रश्नर जवाब रे यह सूचना देइछंती। तेबे 2015 परठू चलित वर्ष सबुठ अधिक लोक भारतर नागरिकता छाड़िछंती। 2015 रे मोट 1,31,489 जन भारतीय नागरिकता छाड़िथिले। तेबे नागरिकता छाड़ी जाइथिबा लोके एठारु केते संपत्ति नै जाइछंती तार तथ्य सरकारଙ୍କ पाखरे नथिबा से कहिथिले। नंबर 25 रूस और चीन पर नुआ कटकणा जारी ପାଇଁ योजना करुछि अमेरिका। रिपोर्ट शुक्रवार दिन रूस और चीन पर अमेरिका नुआ कटकणा जारी करने को योजना करुवा कथा गुरुवार दिन दुई जन अमेरिका सरकारी अधिकारी कहिथिबा कथा द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट करिछि। यूक्रेन युद्ध में इरानीय ड्रोन प्रयोग करिथिबारु मस्को प्रति शास्ति विधान लगी मध्य कटकणार व्यवस्था थिबा कथा सेमाने सूचना देइछंती। सेमाने कहिसंती जे 170टी चीना संगठन उपरे भी एही कटकणा लागू कराजिबो। यार कारण दर्शाइबाकु जाई सेमाने कहिसंती जे प्रशांत महासागर अंचल में उपरोक्त संगठन सबू बेआईन भाव माछ मारुछंती बोली वाशिंगटन विचार करुछि। एछड़ा चीन से अंचल में मात्राधिक माछ मारिबा सहित बेजिंग सामुद्रिक प्रभाव विस्तार करने लगी अधिकरू अधिक माछधरा पोत मुतयन करुछि बोली अन्य राष्ट्र माने चिंतित अछंती। नंबर 26 केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति है भारत राष्ट्र समिति। राजनीतिक दल तेलंगाना राष्ट्र समिति एवं भारत राष्ट्र समिति नाम चिन्हित हेबो। निर्वाचन आयोग टीआरएस नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति भारत राष्ट्र समिति करने को स्वीकार करिसंती। निर्वाचन आयोग टीआरएस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को सूचित करिसंती। नंबर 27 150 कोटी अकाउंट डिलीट करिवो ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया ट्विटर मेमोरी स्थान शेष हो आसिलाणी। एणु स्थान खाली करने को प्राय 150 कोटी अकाउंट डिलीट करने को निष्पत्ति नहीं कंपानी। ए संपर्क में काली ट्विटर सीईओ एलन मस्क काली एक ट्वीट करी सूचना देइछंती। से कहिसंती जे एपरी बहुत अकाउंट अछंती जो माने कि वर्ष वर्ष धरी अकाउंट को खोली नाहंती किंबा कोनोसी ट्वीट करी नाहंती अथवा किसी एक्टिविटी करी नाहंती। ट्विटर बॉट गुड़ी को नियंत्रण करने को मस्क एपरी पदक्षेप नेउथुबा कहुजाउछि। ट्विटर को किनिबा पूर्वरु से बॉट गुड़ी को नहीं चिंता प्रकट करथिले। सूचनायोग्य जे ट्विटर बॉट गुड़ी को गोटे गोटे अकाउंट होइथिले भी सेगुड़ी को कौनसी मनीष चढ़ाती नहीं बरं सेगुड़िक एक छद्म नाम व्यवहार करी एक ऑटोमेटेड एप्लिकेशन माध्यम रे चली थाए। ए निजे निजे ट्वीट रिट्वीट लाइक आदि ट्विटर एक्टिविटी करी थाए। नंबर 28 लोकप्रिय रैपर नैन्सी कॉन्सुएग्रा को हत्या। ग्वेटमालर लोकप्रिय हिपहप रैपर हत्या संदेह।
ଭଙ୍ଗା କାର୍ ଭିତରୁ ନେସ୍ରି କନସୁଏଗ୍ରାଙ୍କ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ଏକ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଭିତରେ ରଶିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାପରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଦ ୟୁଏସ୍ ସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ ରାପର ନେସ୍ରି କନସୁଏଗ୍ରା। ଶୁକ୍ରବାର ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ୱେଟମାଲାନ ସହରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ପରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। 27 ବର୍ଷୀୟ ନେସ୍ରି କନସୁଏଗ୍ରା 2013ରୁ ହିପ୍ହପ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ମହିଳା ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ଓମେନ୍ ଫ୍ରି ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନେସ୍ଲି। ନମ୍ବର 29 ରୋହିତ ଦୀପକ ଓ ସେନ୍ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ, ଫେରିଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରି ସାରିଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିଆରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଦୀପକ ଚହର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା କୁଲଦୀପ ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଜି ଦିନ 11:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ, ଶିଖର ଧୱନ, ବିରାଟ କୋହଲି, ରଜତ ପଟିଦାର, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଶାନ କିଶନ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ନମ୍ବର 30 ତନ୍ମୟୀ ପ୍ରିୟଙ୍କଙ୍କ ଶତକ, ମିଜୋରାମକୁ 334 ରନରେ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡଲି କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତନ୍ମୟୀ ବେହେରା 122 ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୁଦୁଲି 113ଙ୍କ ଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ମିଜୋରାମକୁ 334 ରନରେ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ବୃହତ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିକ୍କିମକୁ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ବିଶାଳ 423 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। 424 ରନ୍ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ମିଜୋରାମ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ମିଜୋରାମ 38.3 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 89 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।